Hey guys, yes or no? Yes, Right? sir. In previous class, we discussed the VLAN, what is VLAN, what is trunk, right? I think I explained you about the native VLAN also, right? If I'm not wrong. Yes, Are you sir. telling me? Yes or no? What is the use of native VLAN? What is the use of native VLAN? To share the what things Mhm. the uh, uh, CDP or That is called control plane traffic. उसे हम कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक बोलते हैं. ठीक है? नॉट control plane. हाँ, कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक. कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक जो आपकी सीडीपी की पैकेट होती है. अरुणा, यू नो हिंदी ना? सीडीपी, अरुणा, डीटीपी. हाँ सर, हाँ सर, समझी। हाँ, सॉरी. हाँ सर, हिंदी मालूम। Okay, okay, cool. I think you are the friend of Subhajit, right? If जी। I'm not wrong. हाँ हाँ। Okay. So guys, CDP, DTP, VTP, so ना these type of traffic ना इसे हम control plane traffic बोलते हैं. ठीक है? तो for these traffic ना, these traffic actually exchange between the switches after some time, है ना? जैसे for example CDP की केस में मैंने बताया था ना, after 60 second by default ये exchange होती है. Yes or no? Right ना? So for these traffic na, we do not want any types of tagging, right? So in this case we use a native VLAN, है ना? So what native VLAN will do, basically these traffic will be the part of native VLAN, and for native VLAN there will be a no tagging if you are using the .1 queue, right? ना मैंने बताया था ना guys. Yes, sir. For generally two types of protocol we are using, .1 queue and ISL, right? If you use the ISL, that is the disadvantage. For ISL, what ISL will do? ISL perform the tagging for native VLAN also. अरे ISL native VLAN के लिए भी tagging कर रहा था ना? Yes or no? हाँ. Right Yes, ना? sir. But हम क्या चाहते हैं? हम नहीं चाहते कि भाई कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक के लिए क्या हो, टैगिंग हो, राइट ना? अदरवाइज क्या होगी, लिंक पे कंजेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी. गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? राइट. Yes. तो हम क्या यूज करते हैं गाइस नाउ इट इज वी आर यूजिंग द टैगिंग. जस्ट अ मिनट गाइस.
Sorry, guys. Basically, when you configure the trunk, there are two protocol, right? ना .1q और ISL, right? तो हम क्या prefer करते हैं Yes, guys? sir. Nowadays we prefer .1q, right? Because .1q is not going to tag your traffic for the native VLAN, right ना? Guys, यही तो था. Native VLAN के लिए कोई tagging वैगिंग नहीं हो रहा था. Clear? Yes or no? बताओ. Yes, sir. Yes, sir. Now, for example, that is the switch 1 and that is the switch number 2. And I told you ना in the previous class के between the switches हम क्या use करते हैं guys? Trunk link होता है हमारा. Yes or no? Right ना? And between the switch and end user device, here ये access link होता है. Right ना everyone? Yes or no? समझते हो ना ये चीजें? हाँ सर. हाँ सर. एंड यूजर और स्विच के बीच में जो लिंक होती है वो एक्सेस लिंक होती है. दैट इज कॉल्ड एक्सेस पोर्ट बिकॉज हेयर स्विच इज एक्सपेक्टिंग ओनली वन VLAN, राइट ना? स्विच यहाँ पे Yes. एक VLAN एक्सपेक्ट कर रहा है, यहाँ मल्टीपल VLAN एक्सपेक्ट नहीं कर रहा. इसीलिए यहाँ पे क्या होती है गाइस? एक्सेस पोर्ट होती है. मोहित, यू नो ना व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेस पोर्ट एंड ट्रंक पोर्ट? एक्सेस पोर्ट मींस that port is defined for any one particular VLAN. वहां पे कोई multiple VLAN नहीं मिलेगी आपको, वहां पे कोई switch multiple VLAN expect भी नहीं करेगा. Getting my point? And trunk means that port, through that port multiple VLAN can carry, right ना? उस port से multiple VLAN आ सकती है, जा सकती है, ऐसा. Done? Understand? Now, this is the switch number 1 and this is the switch number 2. So guys, that is the trunk link. Now tell me, I want to make this link as the trunk link, or you can say I want to configure this port as a trunk port. So how many ways? आप कितने तरीके से कर सकते हो ट्रंक? कौन बताएगा मुझे? There are how many ways by which you can configure this link as the trunk link? कोई बताएगा मुझे? Guys, no? Okay. One more question. I told you about the native VLAN. Native VLAN मैंने बताया ना अभी आप लोगों को. अरे बताओ. Yes or no? Yes, sir. By default कौन सी VLAN native VLAN होती है? Which VLAN is called by default native VLAN? One. VLAN 1, exactly, because by default switch पे VLAN 1 ही कॉन्फ़िगर होती है गाइस. इसीलिए native VLAN by default क्या होगी? VLAN number 1 is called the native VLAN. Fine. Second question. I want to change the native VLAN. What is the command? That is the switch 1. That is the switch number 2. For example, that is fast Ethernet 0x0. I want to change the native VLAN here. What is the command? बताओ कोई. First of all, आपको कहां जानी है गाइस? You need to go on the interface. Interface, fast Ethernet, 0x0. Understand? In step number 1. In step number 2, what you need to do? You need to write switch port, mode, trunk. आपने क्या बना दिया इस लिंक को? पोर्ट को ट्रंक पोर्ट बना दिया? Yes or no? Tell me, बताओ. Yes or no? Right? After that, in third step, you need to write the command switch port, trunk, native VLAN. फॉर एग्जांपल मुझे 100 बनानी है, मैंने ये लिखा. कितने कमांड हुए गाइस? बताओ कितने कमांड हुए? तीन काउंट. फॉर एग्जांपल लेट सपोज मेरे पास ना ऐसा टोपोलॉजी है, मैंने इसे ऑन किया, अब मैं आया इस स्विच के ऊपर, कमांड क्या होती है चेक करने का गाइस? सो इंटरफेस ट्रंक. कोई ट्रंक बनी हुई है यहाँ पे? यस और नो? नहीं बनी हुई है ना? ओके. नाउ सी कॉन्फ टी, मैं आता हूं इंटरफेस पे. इंटरफेस ईथरनेट क्या है भाई? 0x0 है ना? यस और नो? राइट. नाउ स्विच पोर्ट, मोड, ट्रंक. क्या एरर मिल रहा है? कमांड रिजेक्टेड. An interface whose trunk encapsulation is auto cannot be configured as the trunk. क्या एरर है? ये पुराना स्विच है इसलिए आपको एरर दिख रही है. On new switch you guys will not get the error. New switch will accept this command. It is telling before write this command you need to configure which trunking encapsulation protocol you want to use. Are you getting my point?
switch Yes, port, yes. trunk, encapsulation. For example, I want to use the dot one queue. I want to use dot one queue. Now I am writing switch port mode trunk. ये ले लिया. समझ में आया? Yes or no? अरे बता दो. Yes, sir. Done. Okay. So first command, what I did, guys? Switch port. First of all, I go to the interface and then I write the switch port mode trunk. Right now, then you need to write which command? Switch port trunk and a native VLAN. For example, I want to make native VLAN 100. मैंने native VLAN क्या बना दिया? 100. अरे understand? Yes or no? बताओ. So, Yes, sir. Yes, sir. interface trunk. Now see, आपका Ethernet 0x0 क्या बन गया? ट्रंक बन गया. प्रोटोकॉल कौन सा यूज कर रहे हो? डॉट वन क्यू यूज कर रहे हो. स्टेटस क्या है? ट्रंकिंग. नेटिव VLAN क्या यूज कर रहे हो? 100. Getting my point, everyone? Yes or no? Tell me. Yes, sir. Right? So, running configuration, interface, Ethernet 0x0. मैंने इस वाले इंटरफेस पे क्या क्या चलाया था? मैंने चलाया स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल चलाया, स्विच पोर्ट मोड नेटिव VLAN चलाया, ट्रंक चलाया. यस और नो? बताओ. अरे टेल मी. Yes, sir. Right now, so basically this is the way by which we configure the trunk, and this is the way by which we configure the native VLAN. I hope everyone understand. Clear na? Yes or no? Yes, sir. And show interface trunk. अब ये बताओ right now how many VLANs are allowed here on this trunk? All the VLAN is allowed. Yes or no? अरे tell me. Right now? Yes. Okay. Now interface Ethernet 0x0 switch port trunk allowed VLAN. I want to allow particular VLAN. For example, I'm writing VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30. It is not taking. Why? It should take. ले लिया ना? मैंने VLAN क्या लिखा? 10, 20, 30. Right ना? Yes or no? अरे tell me. Right? Yes, sir. अब मैं लिख रहा हूँ switch port so interface trunk. Now see which VLAN is allowed. Only VLAN 10, 20 and 30 is allowed. Yes or no? अरे बताओ. अब सारा Yes, sir. VLAN allowed है क्या? नहीं ना. Only No. VLAN 10, 20 and 30 is allowed. अरे tell me yes or no? Agree ना? Okay. Yes. Now interface Ethernet 0x0 switch port trunk allowed VLAN. Right? Up for example, if I want, my manager is telling, please do one thing, add here VLAN number 50 also, allow VLAN number 50 also. So if you write here VLAN 50, now write here do show interface trunk. क्या हो गया? अरे do show interface trunk. अब देखो, जैसे ही आपने ये कमांड लिखा, क्या हो गई? रिमेनिंग क्या हो गई? उड़ गई. अरे यस और नो? अरे VLAN 10, 20, 30 removed na? Yes or no? Yes. Yes, sir. That is the problem. And same I told you, okay, whenever you are doing these type of thing, you need to, what you need to do? Switch interface. What is the command? बताओ. Switch port, trunk, allowed, VLAN, and then I told you ना कि add keyword आपको use करनी है. Yes or no? 10, Yes. 20 and 30. Now write the same command. Do so interface trunk. Now see, this is fine. I hope everyone Yes. understand. अब समझ में आया कि मैं add keyword क्यों use करता हूँ? Clear है? हाँ, sir. Yes, sir. So guys, basically this is the way by which we configure the trunk, by which we configure the native VLAN. I hope everyone understand. Clear ना? समझ में आया ना? अरे बता दो. Yes, Clear है? sir. Yes, sir. Okay. Now, guys, I asked one question कि how many ways by which you configure the trunk? आप कितने तरीके से trunk configure कर सकते हो? Getting my point? अरे understand? So guys, basically there are two ways by which you configure the trunk. First one is statically. First one is called static, and second one is called dynamic. Static means अभी तक जो काम करते आए हो, that is called static. Getting my point? You go to the interface and you are writing the command manually, na? Switch port mode trunk. That is called static. Fine. And dynamic means what? Dynamic means what?
we need one protocol, we will configure one protocol, and by the help of that protocol trunking will automatically configure. Trunk automatic configure hota hai. It is called dynamic, and this is possible because of which protocol? DTP. DTP. ये प्रोटोकॉल का नाम क्या है गाइस? DTP. DTP stands for Dynamic Trunking Protocol. Yes. तो DTP के लिए ऐसा समझ लो कि DTP it is a Cisco proprietary. ठीक है, ये किसका प्रोप्राइटरी है गाइस? किसने डेवलप किया था इसे? सिस्को ने. इसको क्लियर है ना? सो ऐसे समझ लो कि DTP is a Cisco proprietary protocol that automate the negotiation of trunking between two devices. इसका काम क्या होता है? ट्रंकिंग को नेगोशिएट करना. क्या करना गाइस? नेगोशिएट करना. गेटिंग माय पॉइंट? नाउ अगेन यू गाइस विल थिंक कि सर व्हाट डू यू मीन बाय नेगोशिएशन हियर? अरे गेटिंग माय पॉइंट? इसका क्या मतलब है? इसका नेगोशिएशन से क्या लेना देना है? अरे अंडरस्टैंड, सी नेगोशिएशन का ये मतलब होता है एक्चुअली ना, ऐसे समझ लो स्विच नंबर 1 है, स्विच नंबर 2 है, that is called interface. Yes or no? That is called interface. Are you getting my point? That is called interface. And there are two mode of the interface. हर interface का दो मोड होता है. कितने मोड होते हैं guys? दो मोड होते हैं. I can show you. See. Interface, Ethernet, 0x0, switch port, mode, I press the question mark. कितने मोड आपको दिख रहे हैं यहाँ पे? कोई बताएगा मुझे? आपको एक मोड दिख रहा है एक्सेस. Yes, sir. एक मोड दिख रहा है ट्रंक. Yes, sir. राइट? इट मींस इफ यू राइट ट्रंक, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, तो ये क्या बन जाएगा? पोर्ट ट्रंक बन जाएगा. अगर आप लिखते हो स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, ये लिंक क्या बन जाएगी? ट्रंक मिल जाएगी. नो टेल मी, अरे टेल मी गाइस, यस और नो? राइट ना? फॉर एग्जांपल आई राइट ट्रंक अगेन, आई प्रेस द क्वेश्चन मार्क, नथिंग इज देयर. इट मींस we can either we can make this port as the trunk port or either we can make this port as the access port. Yes or no? अरे बता दो. Yes. राइट ना? अरे बताओ. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now there is one problem. When I write switch port mode, switch port mode, अब मैं एक चीज यहां से हटा रहा हूं. डायनामिक क्यों नहीं ले रहा भाई? ये सपोर्ट नहीं कर रहा क्या? ओहो, स्विच पोर्ट मोड नहीं यार, इसमें नहीं देगा. स्विच पोर्ट मोड देखने तो मुझे पैकेट ट्रेसर ऑन करके, पैकेट ट्रेसर में कहीं ले ले. स्क्रीन दिख रहा है ना गाइस? Yes, sir. इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x1, स्विच पोर्ट mode, I press the question mark. What is the thing you guys are able to see? Yes. Yes. Now see, access trunk. Yes or no? अरे बस समझ में आ रहा है? ये दो चीजें हैं. Yes, sir. Okay. Now see one thing. When I write switch port mode access or I write switch port mode trunk, what will happen? अगर आप access लिखोगे तो आपका पोर्ट क्या बन जाएगा? Access बन जाएगा. Yes or no? Right? If I write switch port mode trunk, my port will become the trunk. Yes or no? Right? Yes. And I am configuring this port either access or either trunk. That is called manual method. ये manually कर रहा हूँ ना मैं? Yes or no? Yes, sir. अरे बताओ. Right ना? That is Yes. called manual, or you can say that is static. Static. अब मैं यहाँ आया मोड, मैं लिख रहा हूँ डायनामिक, I press the question mark. Now see,
नाउ आई वांट टू मेक दिस पोर्ट ट्रंक और एक्सेस डायनामिकली, मैं चाह रहा हूं ये ऑटोमेटिक हो जाए। तो जब मैंने डायनामिक लिखा, अपने क्वेश्चन मार्क प्रेस किया, देयर आर हाउ मेनी वेज? टू थिंग्स आर देयर, ऑटो एंड डिजायरेबल। अरे गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? देयर आर टू थिंग, ऑटो एंड डिजायरेबल। अरे क्लियर है? यस और नो? राइट ना? सो नाउ देयर आर टू थिंग, इट मीन्स मैंने क्या बोला था कि आप ट्रंक कॉन्फ़िगर कर सकते हो डायनामिकली। इट मीन्स डायनामिकली ट्रंक इज रिलेटेड टू स्विच पोर्ट मोड। अगर आप ट्रंक चाह रहे हो ना ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर करना, ये किस चीज से रिलेटेड है गाइस? ये रिलेटेड होगा आपके स्विच पोर्ट के मोड के साथ। मैंने क्या बताया था, कितने तरीके का मोड होता है स्विच पोर्ट में? देयर आर टू मोड्स ऑन स्विच, दैट इज द स्विच पोर्ट, फास्ट इथरनेट 0x0। इस वाले पोर्ट्स का देयर आर हाउ मेनी मोड? दो मोड होंगे। एक मोड होगा डायनामिक ऑटो और दूसरा मोड होगा डायनामिक डिजायरेबल। अरे समझ में आया? या तो आप इस मोड को डायनामिक ऑटो कॉन्फ़िगर कर दो, या तो आप इस स्विच के पोर्ट को डायनामिक डिजायरेबल कॉन्फ़िगर कर दो। देयर आर ओनली टू थिंग। अरे गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? Yes, sir. अंडरस्टैंड ना? सो अब मन में क्वेश्चन आएगा कि गाइस ट्रंक बनेगा कैसे? ट्रंक बनेगा कैसे? गेटिंग माय पॉइंट? सो प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, when you configure, for example that is the switch number 1, that is the switch number 2, अगर आपने यहाँ पे डायनामिक ऑटो कॉन्फ़िगर किया और यहाँ पे आपने डायनामिक ऑटो कॉन्फ़िगर कर दिया, तो दिस लिंक विल बिकम द एक्सेस लिंक और एक्सेस पोर्ट। समझ में आया एवरीवन? यस और नो? क्लियर है? Yes. अरे बताओ, Yes, क्लियर sir. है ना? आपको जरूरत नहीं है स्विच पे जाकर के मैनुअली कमांड लिखने की, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। नो, what you are doing, you are just changing the switch port mode. This is step number 1. Step number 2, आप बोलोगे कि सर एक काम करता हूं, मैं यहाँ पे डायनामिक ऑटो कर देता हूं और यहाँ डायनामिक डिजायरेबल कर देता हूं। यस यू कैन डू। नाउ दिस लिंक विल बिकम द ट्रंक लिंक। क्या बन जाएगा गाइस? ट्रंक लिंक बन जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? थर्ड थिंग, कॉन्फ़िगर हियर डायनामिक डिजायरेबल एंड हियर आल्सो डायनामिक डिजायरेबल। ये लिंक क्या बन जाएगी? ट्रंक। So please remember these three rules for DTP. DTP में यही है, तीन चीजें याद रखनी है आपको। Clear guys, everyone? Yes or no? Tell me. Understand? अरे बताओ, yes or no? Okay. Yes, sir. Now see here, come here on this switch. मैंने उस टाइम यहाँ पे कमांड चलाया हुआ है ना, क्या कमांड चलाया हुआ था गाइस? बताओ, मैंने इंटरफेस, मैंने क्या कमांड चलाए थे यहाँ पे? मैंने इसको ट्रंक बनाया था ना मैनुअली। यस और नो? Oh, interface fast ethernet 0x1, no switch port mode trunk। मैंने चलाया था ना ये कमांड? यस और नो? अरे बता दो, राइट ना? सो इंटरफेस ट्रंक, अरे बता दो। अब Yes, देखो, sir. ट्रंक दिख रही है? No. भी ट्रंक दिख रही है, ये भी ये ट्रंक दिख रही है। व्हाट इज द रीजन? कम हियर, इंटरफेस फास्ट इथरनेट, ये कौन सा इंटरफेस है गाइस? 0x1, 0x1. नो स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। डन है? स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, मैंने इसे एक्सेस पोर्ट बना दिया। ठीक है गाइस? यस और नो? मैंने इस वाले पोर्ट को भी क्या कर रहा हूं? इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x1 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। अब मैं कमांड लिख रहा हूं, स्विच सो इंटरफेस ट्रंक। इज देयर एनी ट्रंक लिंक नाउ? नो ना? देयर इज नो No. ट्रंक नाउ। यस और नो? राइट। नाउ अब मुझे ट्रंक बनानी है। कौन बताएगा मुझे?
अब मुझे ट्रंक बनानी है without writing that command, switch port mode trunk, because switch port mode trunk is the manual static command. Yes ना? अरे उस कमांड से हम स्टैटिकली ट्रंक बनाते हैं. Yes or no? I know desirable. Yes. So what I told you, there are 3 rules. मैंने क्या बताया था गाइस? कितने रूल्स हैं? 3 रूल्स हैं. या तो आप डायनामिक डिजायरेबल बना दो, या तो आप डायनामिक ऑटो बना दो. तो डायनामिक ऑटो से क्या बन जाएगी गाइस? एक्सेस बन जाएगी. Are you getting my point? Yes or no? Understand? Yes, For example, come here on switch number 1. Fast Ethernet 0 by sorry. That is 0 by 1 ना. 0 by 1. अब जरा इस इंटरफेस को जरा ठीक से देखना. इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0 by 1. एक चीज पढ़ना गाइस. Everyone. That is up, that is connected, that is the something hardware address, that is this one. ARPA is already there. Keep alive, that is after every 10 seconds. Is there anything? No. To show interface fast Ethernet 0 by 1 switch port. What I write guys? Fast Ethernet switch port. Now एक चीज देखो क्या दिख रहा है, ठीक से पढ़ना इसे guys. What is this? static access. Administrative mode is static access. It means You statically access, configure the access. administrator ने इस वाले पोर्ट को static access कॉन्फ़िगर किया है. Getting my point, everyone? That is the Yes, meaning sir. of this line. Now, operational mode. भाई दोनों में डिफरेंस है. Please don't confuse. दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये आपने कॉन्फ़िगर किया है और ये आपका बना. That is the configuration and that is the result. Getting my Yes. point? Okay. So एडमिनिस्ट्रेटर ने इसे स्टैटिक एक्सेस कॉन्फ़िगर किया और आपका पोर्ट बन क्या गया? स्टैटिक एक्सेस बना. Getting my point, everyone? Mohit, you understand? Again, I am telling administrator configure this one, and after configuration, your port become static access. Getting my point? And Yes. administrative trunking encapsulation is .1 queue. I told you na, by default nowadays we are using the .1 queue. And native VLAN क्या है आपका by default guys? यहाँ पे क्या है? 1. One. Yes ना? Okay. Now negotiation of trunking क्या दिख रही है आपको? Off. Off. Guys, negotiation of trunking का मतलब होता है that is DTP. Negotiation of trunking is called guys DTP. क्या बोलते हैं इसे? DTP. अरे understand everyone? Yes, sir. Okay. Yes, sir. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चाह रहा हूं कि नेगोशिएशन ऑफ ट्रंकिंग को इनेबल करना, देखो स्विच पोर्ट देखते हैं कहां चलता है ये. आई डोंट थिंक पैकेट ट्रेसर लेगा, देखता हूं फिर भी करके. बट ऑन रियल टाइम यू गाइस कैन रन दिस कमांड. स्विच पोर्ट नो nego ti, दैट इज द कमांड गाइस. ये नहीं ले रहा. अच्छा आ जाओ. इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0 by 1, शायद इंटरफेस पे ले ले. स्विच पोर्ट नो नेगोशिएट. मैंने ये कमांड चलाया ना गाइस, नो नेगोशिएट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस कमांड? कोई बताएगा मुझे? बाय द हेल्प ऑफ दिस कमांड व्हाट यू आर डूइंग? यू आर डिसेबलिंग द डीटीपी. आप डीटीपी को क्या कर रहे हो? डिसेबल कर रहे हो. Disable. ओके. एंड इफ आई एम जस्ट रिमूविंग द नो हेयर, लेगा ही नहीं. स्विच पोर्ट ले रहा है. ओनली ये सपोर्ट कर रहा है नो नेगोशिएट को. गेटिंग माय पॉइंट? ये नो नेगोशिएट को ही सपोर्ट कर रहा है. अरे क्लियर एवरीवन? यस और नो? आप एक Yes. काम कर सकते हो. Yes, sir. आप एक काम कर सकते हो. इंटरफेस फास्ट इथरनेट
0/1, इसीलिए इसको सिलेबस से हटा दिया अब, क्योंकि नाउअडेज अब ये यूज नहीं होता, क्योंकि हम डीटीपी को बाय डिफॉल्ट रियल टाइम में बंद रखते हैं गाइस। ठीक है, हम नहीं चाहते कि कोई भी चीजें ऑटोमेटिक हो आपके स्विच पे, हम चाहते हैं कि वट एवर यू गाइस आर कॉन्फ़िगरिंग मैनुअली सेम चीजें हो। गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आया भाई? इसीलिए हम डीटीपी नाउअडेज रियल टाइम कंपनी में मेक श्योर ये बंद रहती है, डिसेबल होती है। ओके, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1। नाउ आई एम राइटिंग स्विच पोर्ट। नाउ बताओ भाई, स्विच पोर्ट मोड डायनामिक डायनामिक डिजायरेबल मार्क किया, तो आपके पास दो ऑप्शन है, ऑटो या फिर डिजायरेबल। आई एम राइटिंग डिजायरेबल ऑटो, मैंने ऑटो डाल दिया। कमांड रिजेक्टेड, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द नो नेगोशिएट एंड डायनामिक स्टेटस। क्या बोल रहा है, इसका क्या मतलब है, कोई बताएगा मुझे? मतलब डीटीपी ऑफ है और आप ऑन करना चाहते हो। यस, इसका मतलब ये है गाइस, इसका मतलब ये है कि आपने जब ये कमांड चला रहे हो ना, स्विच पोर्ट मोड डायनामिक ऑटो, इट मींस यू आर टेलिंग द स्विच कि प्लीज नेगोशिएट विद अदर स्विच। आप स्विच 1 को बोल रहे हो कि भाई प्लीज, ऐसे समझो भाई, ये स्विच 1 है, ये स्विच नंबर 2 है। आपने यहाँ क्या क्या कमांड डाला गाइस? स्विच पोर्ट मोड डायनामिक ऑटो, यस और नो? राइट, इट मींस यू टेलिंग दिस स्विच प्लीज नेगोशिएट विद दिस स्विच। if this port is auto, then make this link as the access, and if this port is the dynamic desirable, then make this link as the trunk। आप यही तो बोल रहे हो, यस और नो? अरे बताओ। अरे आप जब स्विच 1 पे ये कमांड चला रहे हो ना, आप स्विच 1 को ये बोल रहे हो कि भाई तुम अगले वाले स्विच के साथ ना नेगोशिएट कर लो। अगर अगला स्विच का ये वाला इंटरफेस ऑटो है तो इस लिंक को तुम एक्सेस लिंक बना दो, और अगर ये पोर्ट डायनामिक डिजायरेबल है तो इस लिंक को क्या बना दो? ट्रंक बना दो। यही तो तुम बोल रहे हो स्विच को इस कमांड से। गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन, यस और नो? बताओ। यस ना? बट ऑन द सेम स्विच समटाइम्स एगो, मैंने अभी कुछ टाइम पहले एक कमांड चलाया था, स्विच पोर्ट नो नेगोशिएट, ये चलाया था ना, नो नेगोशिएट। बताओ इसका क्या मतलब था? मैंने बाय द हेल्प ऑफ दैट कमांड आई डिसेबल द डीटीपी, मैंने डीटीपी को मैनुअली बंद कर दिया था। यस और नो? बताओ यस सर। गाइस, एवरीवन, यस और नो? टेल मी। राइट, यस सर। if I disable Yes, the sir. DTP here, then how this switch will negotiate with each other? अरे ये अगर आपने डीटीपी को डिसेबल ही कर दोगे तो भी ये स्विच इसके साथ नेगोशिएट कैसे करेगा? अगर मैं आपका पंख ही काट दूं तो आप आसमान में उड़ोगे कहां से? गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो? इन द सेम वे this switch, when you are disabling the DTP, how this switch will negotiate with this switch? Not possible. Switches are negotiating with each other because of DTP. किसके वजह से नेगोशिएट करता है गाइस? डीटीपी की वजह से, नॉट ऑटोमेटिक। ऐसा नहीं है कि ऑटोमेटिक खुद नेगोशिएट कर लेगा, नहीं, ये डीटीपी की वजह से नेगोशिएट करता है। गेटिंग माय पॉइंट? बट राइट नाउ व्हाट यू डिड, यू डिसेबल द डीटीपी, आपने डीटीपी को डिसेबल कर दिया है। इसीलिए आपको यहाँ क्या कमांड बोल रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या हो रहा है गाइस? कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्यों? ये बोल रहा है कि एक तो आप डायनामिक कमांड भी यूज कर रहे हो, आप बोल रहे हो स्विच को कि भाई आप डायनामिकली चीजें परफॉर्म करो, नेगोशिएट करो, और आप नेगोशिएट को बंद भी कर दोगे, तो फिर कैसे काम चलेगा? दोनों चीजें एक साथ कैसे होगी? गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो? अंडरस्टैंड? मेरे बता दो। इट मींस व्हाट यू नीड टू डू गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू रिमूव दैट कमांड। आपको वो कमांड को रिमूव करनी पड़ेगी। स्विच पोर्ट नो नेगोशिएट चलाए थे ना आप लोगों ने, यस और नो? हमने यही तो चलाया था, स्विच पोर्ट नो नेगोशिएट। अरे बता दो भाई, यस और नो? राइट, आई एम राइटिंग नो Yes. एंड आई पेस्ट दिस कमांड। मैं इसे हटा देता हूं। अरे बता दो, क्लियर है, यस और नो? यस अब सर। यहाँ पे डालता हूँ, सो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 स्विच पोर्ट। अब देखो, नेगोशिएशन ऑफ ट्रंकिंग क्या दिख रही है अभी यहाँ? ऑफ दिख रही है। अरे बता दो, ठीक यस है? सर। अब आता हूं मैं, ओहो, कॉन्फ टी इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1, मैंने क्या कमांड चलाया था गाइस? स्विच पोर्ट, स्विच पोर्ट बताओ, मोड मोड, मोड आगे डायनामिक ऑटो आगे बताओ, स्विच पोर्ट मोड डायनामिक ऑटो
ऑटो। अब ले लिया कमांड, Yes, sir. ले लिया, ठीक है। Yes. स्विच नंबर 2 पे आओ। अगर मैं स्विच नंबर 2 पे आ जाऊं, स्विच नंबर 2 पे आया, मैं लिख रहा हूं सो इंटरफेस। देखो जैसे ही मैंने डीटीपी में मोड चेंज किया, स्विच का इंटरफेस क्या हुआ, डाउन होता है एक बार, याद रखना, ठीक है। फास्ट स्विच पोर्ट इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 स्विच पोर्ट। मैंने यहाँ स्विच पोर्ट लिखा। अब एक चीज बताओ, क्या चल रहा है यहाँ पे, स्टैटिक, Access. यानी मैनुअली आपने उसे एक्सेस बनाया था, बट मुझे मैनुअली नहीं पढ़ना, मुझे पढ़ना है डायनामिक। यस और नो? अरे बता दो। Yes, sir. इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 स्विच पोर्ट, बताओ। स्विच पोर्ट Mode. मोड, Mode. बताओ। डायनामिक, ऑटो, Design. मैंने ऑटो डाल दिया, Auto. ठीक है। यानी स्विच 1 पे भी ऑटो, स्विच 2 पे भी ऑटो। यस और नो? टेल मी। Yes. Yes, sir. राइट नाउ आई एम राइटिंग स्विच पोर्ट so interface fast ethernet 0/1 switch port. Now see, I configured administratively why dynamic auto, मैंने यही कॉन्फ़िगर किया था ना डायनामिक ऑटो। यस और नो? Yes, sir. बना क्या, व्हाट इज द रिजल्ट, Static static access. access. I told you ना सेम थिंग। This is switch number 1, switch number 2, case number 1. According to case number 1, if you configure this port as a dynamic auto and this port as a dynamic auto, as a result, this link will be, guys, which one? Access link. Yes or no? यही तो बताया था मैंने, access Yes. link बनेगा. That's the reason this link is the access link. Is this clear? Everyone tell me yes or no. सर बना तो दोनों पोर्ट स्टैटिक एक्सेस डायनामिक में, लेकिन वो एक्सेस मैंने मतलब स्टैटिक क्यों दिखा रहा है? ये अच्छा तुम बोल रहे हो कि यहाँ पे ये डायनामिक एक्सेस दिखे, ऐसा? हाँ, ऐसा क्यों नहीं दिखा रहा है कि डायनामिक एक्सेस? ये देखो, एक्सेस हमेशा ना स्टैटिकली ही दिखता है। एक्सेस कभी भी आपको डायनामिक नहीं दिखेगा, ओके ठीक है। ओके ओके। ये हमारा रिजल्ट है। एज ए रिजल्ट दिस लिंक क्या बना गाइस, दिस लिंक इज कॉल्ड द एक्सेस लिंक। क्लियर? नाउ आ जाओ केस नंबर 2 पे। देखो केस नंबर 2 के हिसाब से मैंने स्विच नंबर 1 पे क्या कॉन्फ़िगर किया था, ऑन स्विच नंबर 1 व्हाट आई कॉन्फ़िगर्ड, डायनामिक ऑटो। डायनामिक ऑटो, राइट। आई एम ऑन स्विच नंबर 2, ओके। conf t इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 स्विच पोर्ट मोड डायनामिक डिजायरेबल। मैंने क्या कर दिया यहाँ पे गाइस, डायनामिक डिजायरेबल डाला, सट नो सट ये भी डाल दिया मैंने, ठीक है गाइस। यस और नो? अब आ जाओ इंटरफेस। अब बताओ क्या दिख रहा है यहाँ, मैंने क्या चलाया था, डायनामिक डिजायरेबल। स्विच नंबर 1 केस नंबर 2 की बात कर रहा हूँ गाइस, दैट इज केस नंबर 2। इन केस नंबर 2 स्विच नंबर 1 स्विच नंबर 2, here what is running, dynamic auto. Here what I did, dynamic desirable, and according to the rule this link will become the trunk link. So that the reason operational mode is trunk. अब देखो नेगोशिएशन ऑफ ट्रंकिंग क्या हो गई, ऑन हो गई। व्हाई? because you guys are using which command, dynamic, and this is possible whenever you are configuring na dynamic desirable. अरे जब आप कोई चीजें कॉन्फ़िगर कर रहे हो, डेफिनेटली दिस स्विच इज नेगोशिएटिंग ना विद दिस स्विच, यहाँ नेगोशिएशन हो रहा होगा ना। यस सर। yes or no? and this negotiation is possible because of DTP. so that's the reason negotiation of trunking is on here. fine, clear? yes or no? बताओ। यस सर। ओके नाउ कम ऑन स्विच नंबर 1। मैं स्विच नंबर 1 पे हूँ, स्विच नंबर 1 पे हूँ। यस और नो? मैंने Yes. लिखा सट, मैंने किया इसे नो सट, मैं यहाँ कर रहा हूँ स्विच पोर्ट मोड डायनामिक डिजायर, मैंने कर दिया शट, मैंने कर दिया नो शट, ठीक है। यस और नो? फाइन।
मैं लिख रहा हूँ सर ये 60 और 59 एक बार करना पड़ेगा। देखो ऐसा करना नहीं पड़ता, लेकिन मैं अपने सेफ्टी साइड के लिए कर लेता हूँ बस, आदत है ना, रियल टाइम में ऐसे करते हैं। ठीक है, अब देखो मैंने क्या कॉन्फ़िगर किया गाइस यहाँ पे, डायनामिक डिजायरेबल, यस और नो, दैट इज द केस नंबर 3। स्विच नंबर 1, स्विच नंबर 2, क्या कॉन्फ़िगर है यहाँ पे, डायनामिक डिजायरेबल हेयर, डायनामिक, सॉरी डायनामिक डिजायरेबल, राइट ना, यस और नो, अरे डायनामिक डिजायरेबल, डायनामिक डिजायरेबल, एंड दिस लिंक विल बिकम द clear na. So guys, this is the second way by which you can configure the trunk. This is the second way by which you can configure the trunk. Clear everyone, yes or no, बता दो, अरे बता दो, clear है? हाँ So सर। basically guys, there are two ways by which you can configure the trunk. First one is called statically and second one is called dynamically. Clear na? So Dynamically. when you configure the dynamic, that is DTP. कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हो, DTP की वजह से। डन ना, यस और नो, अरे बताओ, क्लियर है? यस अब एक चीज बताओ, हाँ यस, नाउ इट इज वी आर नॉट यूजिंग द DTP, वी आर ऑलवेज ऑफ द DTP इन द रियल टाइम में हमेशा हम DTP को बंद रखते हैं, क्योंकि वी डू नॉट वांट ऑटो नेगोशिएशन, राइट ना। तो ऐसा हो सकता है ना कि किसी फ्लोर पे स्विच लगे हुए हैं, इधर पीसीज कनेक्टेड है, राइट, कोई आएगा अपना एक स्विच लेकर के आ जाए, कनेक्ट कर दे, ऐसा भी तो हो सकता है हैकिंग करने के लिए, अरे बता दो, है ना। यस सर इसीलिए हम DTP हमेशा Yes. क्या रखते हैं guys? बंद रखते हैं, DTP कभी भी ऑन नहीं होता। क्लियर, अंडरस्टैंड? बट यस, DTP is not the part of your CCNA syllabus, so obviously in your exam you guys will not get any questions from the DTP, even from the VTP also, even from the VTP. I just tell you about the VTP, मैं आपको थोड़ा VTP के बारे में बता देता हूँ। You know what is the use of VTP? VTP stands for वर्चुअल ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। virtual trunking, Virtual trunking. trunking protocol. Okay, Trunking protocol. cool. What is the use of VTP? Anyone? oh भाई, VTP का क्या यूज है? नहीं पता? हाँ नहीं। नाम से तो लग रहा है कि अगर फिजिकली कनेक्ट ना हो पाए तो वर्चुअली कनेक्ट कर लेंगे। नाम से ऐसा लग रहा है। ओके ओके, गिव मी 10 सेकंड गाइस। ओके क्या बोल रहे थे, VTP का क्या यूज था गाइस? सॉरी। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी वन थिंग, VTP स्टैंड्स फॉर गाइस VLAN ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। क्लियर? फर्स्ट थिंग, इट इज ए सिस्को प्रोप्राइटरी। ठीक है, ये सिस्को का प्रोप्राइटरी है, समझ में आया? क्लियर है भाई, यस और नो? सेकेंड थिंग, इट वर्क एट लेयर नंबर 2। ये कौन से लेयर पे काम करता है गाइस? लेयर नंबर 2 पे काम करता है। बाय डिफॉल्ट इट्स इनेबल्ड ऑन सिस्को स्विचेस। ये सिस्को स्विचेस पे बाय डिफॉल्ट इनेबल्ड होता है। गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो? क्लियर? पॉइंट नंबर 4, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, it is used to propagate the information of VLAN database.
VLAN database. And one more line about the VTP. It is used to centralize the VLAN management. It is used to centralize the VLAN management. Done. There are 5 points. Now, see the uses of VTP. ऐसे समझो VTP का uses क्या है. Switch number 1, switch number 2, switch number 3. अरे clear है? Yes or no? Done. Yes, sir. ऐसे समझ लो VTP का काम होता है, द मेन यूज ऑफ VTP टू क्रिएट द VLAN डायनामिकली. अभी तक आपको VLAN क्रिएट करनी होती थी तो क्या करते थे? स्विच पे जाते थे, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाते थे. आप क्या लिखते थे? VLAN 10 एग्जिट, VLAN 20 एग्जिट. ऐसे ही कर रहे थे ना हर स्विच पे जा जाके. यस और नो एवरीवन? Yes, sir. Right? Till now, if you want to configure the VLAN, you need to go each and every switch individually and you need to write the command manually. Yes or no? That is the physical task. But what VTP is doing, VTP is telling you, do not create the VLAN manually. I will propagate your VLAN from one switch to another switch automatically. So by default, VTP is configured here, enabled here on the switches. Okay. And for example, your task is to create the VLAN 10, 20, 30, 40 here, as well as here, as well as here. So till now, what you do? You go log in onto the switch and configure one by one. आप switch number 2 पे जाओगे, one by one करोगे. Switch number 3 पे जाओगे, one by one करोगे. Yes or no? Right? Yes. But what VTP will do? I configure here VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, VLAN 40, VLAN 50. So whenever you configure the VLAN, you know VLAN information is stored where? VLAN information is stored कहाँ होता है? आपके फ्लैश मेमोरी में एक फोल्डर होती है that is called VLAN database. क्या होती है guys? एक फोल्डर होती है VLAN database. Getting my point? वहां पे सारी VLANs आपकी स्टोर होती है. Clear? So what VTP will do? VTP will share your VLAN database with other switches. Other switches के साथ आपका VLAN का database automatically ये share कर देगा. It means the VLAN which you configured here on switch number 1 by default will create automatically on switch number 2 and switch number 2 forward this to switch number 3. So switch number 3 create automatically. समझ में आया मैं क्या बोला? कि आपने जो भी VLAN यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया था ना स्विच नंबर 1 पे, ये सारी VLAN की इंफॉर्मेशन आपके VLAN डेटाबेस में स्टोर है. VTP क्या करेगा? आपके VLAN डेटाबेस को उठा के अपने पड़ोसी के साथ शेयर कर देगा, यानी कि VLAN स्विच नंबर 2 के साथ. स्विच नंबर 2 VLAN डेटाबेस को ओपन करेगा और जो भी VLAN आपके VLAN डेटाबेस के अंदर है सेम VLAN यहाँ पे कॉपी हो जाएगी. एंड स्विच नंबर 2 विल फॉरवर्ड योर VLAN डेटाबेस टुवर्ड्स द स्विच नंबर 3. स्विच नंबर 3 भी अगेन सेम काम करेगा. It means on switch number 2 and 3 you do not need to create all the VLANs statically. Right now all the VLAN automatically here create. Right now? Yes or no? बताओ. समझ में आया? So what is the use of VTP? VTP is generally used to propagate the VLAN information from one switch to another switch. Are you getting my point? Yes or no? Understand? Yes, sir. Now that time I write one line. मैंने एक लाइन लिखा था. VTP is used to centralize the VLAN management. ये लाइन लिखा था. Yes. VLAN management को centralize करना. इसका क्या मतलब है? For example, all the VLAN 10 to 50 is created here, here, here. Now I want to delete the VLAN number 50 from all the switches. What I will do? I write here no VLAN 50. 50 यहाँ से क्या हो जाएगी? Delete हो जाएगी? Yes or no? बताओ. Yes. Okay. What switch number 1 will do? Switch number 1 again share this database with switch number 2. Switch number 2 open this database. Switch number 2 will find, oh, there is only VLAN 10 to 40. There is no VLAN number 50. Switch number 2 also update this VLAN database here. And VLAN number 50 क्या करेगा? ये भी remove कर देगा. Same ये भी क्या करेगा? Remove कर देगा. It means if you want to add any VLAN, if you want to delete any VLAN, you do not need to go each and every switches one by one. You can manage each and everything from only one switch. अरे बताओ है ही नहीं? समझ में आया कुछ? Yes. Right ना? So
That is the use of VTP. Fine. Now, again one thing. When you configure the VTP, what are the requirement? There are some requirement if you want to configure the VTP. ऐसा नहीं है कि आप VTP कभी भी configure कर दोगे, नहीं. If you want to configure the VTP, there are some requirement. What are those requirement? Please remember this one. First, between the switches, there must be a trunk. क्या होना चाहिए? Trunk होना चाहिए. समझ में? अरे भाई जैसे ही जब भी आप मल्टीपल VLAN की बात कर रहे हो तो एक्सेस पे पॉसिबल है क्या? नहीं है ना. इसके लिए क्या चाहिए? ट्रंक. राइट ना. सो बिटवीन द स्विचेस देयर मस्ट बी ए ट्रंक. सेकेंड थिंग, VTP डोमेन नेम मस्ट मैच. देखो जब भी आप VTP कॉन्फ़िगर करते हो ना, तो VTP के अंदर ना एक नेम भी कॉन्फ़िगर करते हैं हम. क्या कॉन्फ़िगर करते हैं गाइस? नेम कॉन्फ़िगर करते हैं. द नेम इज कॉल्ड डोमेन नेम. फाइन. So for example, switch number 1, switch number 2, switch number 3. These are the three switches. So if you configure the VTP and if you want to propagate the VLAN information from here to here, it means you need to configure the VTP here. Right now, आपको VTP configure करनी पड़ेगी. And on every switches domain name must be match. अगर आपने मान लो कि यहाँ आपने सिस्को कॉन्फ़िगर किया डोमेन नेम, यहाँ आपने सिस्को कर दिया और यहाँ आपने फिस्को कर दिया, तो ये अपना VTP का इंफॉर्मेशन स्विच 2 के साथ शेयर तो करेगा, बट स्विच 2 इज नॉट गोइंग टू शेयर इट्स VTP इंफॉर्मेशन विद स्विच नंबर 3 बिकॉज दिस इज इन डिफरेंट डोमेन. Getting my point? Domain means just understand like a group. So it means these two switches are in the one group and this is in the different group. So this group is not going to share its information with this one. ये इसके साथ शेयर नहीं करेगा. समझ में आया everyone? Yes or no? So Yes, if sir. you want to configure the VTP, domain name must be match. तभी इस वाले स्विच की इंफॉर्मेशन यहाँ पे भी कॉन्फ़िगर होगी अगर आपका डोमेन नेम यहाँ भी सेम होगा तभी. अगर आपने डोमेन नेम डिफरेंट रखा तो अगर आपने whatever the things you guys are doing here, that is not replicate here if the domain name will be different. Done? Yes or no? Clear na? So basically, and the third thing is password or authentication. Generally in VTP we are using the password also. So whatever the password you are using here, same you need to configure here and here also. So that is optional. अगर आपने ऐसा किया है तो, otherwise जरूरत नहीं है. So but these two are very important when you configure the VTP, or you can say these are the requirement for VTP. ये VTP की requirement है. समझ में आया? Yes or no? Done है? अरे बता दो. Okay. Now the last thing about the VTP, types of VTP. VTP के ना 3 types होते हैं. First one is called, और ऐसा कह लो types क्या समझोगे, ऐसा समझ लो VTP का मोड. VTP के कितने मोड होते हैं guys? 3 मोड होते हैं. First mode is called server mode. Mode guys, server. Second one is called client mode, and third one is called transparent mode. How many mode of VTP? There are 3 modes of VTP: server, client, and transparent. Clear hai? Nowadays on the real time we are using transparent mode. क्या यूज करते हैं guys? Even in my company also I am using the transparent mode. समझ में आया? रियल टाइम में क्या यूज करते हैं? ट्रांसपेरेंट यूज करते हैं. सर्वर मोड और क्लाइंट मोड यूज नहीं करते. अब मैं बताऊं क्यों यूज नहीं करते. देखो, स्विच नंबर 1, स्विच नंबर 2, स्विच नंबर 3. फर्स्ट थिंग, कुछ बातें सर्वर मोड के बारे में समझ लो. सर्वर मोड में एक बात याद रखो, वी कैन remove, we can edit the VLAN information in the server mode. मैं फिर से बोल रहा हूं, सर्वर मोड के अंदर आप VLAN ऐड कर सकते हो, VLAN रिमूव कर सकते हो, VLAN एडिट भी कर सकते हो. Getting my point everyone? Yes or no? Clear? First point. Yes. Second point, nowadays this is by default. आपको कुछ switches पे ये by default server mode दिखेगा. ये पुराने स्विच पे दिखेंगे, नए पे नहीं दिखेंगे आपको. Clear? Yes or no? Point number 2, you need to remember about the server mode. Third point you need to remember, it can generate VTP update.
VTP अपडेट इज नथिंग, दैट इज द टाइप ऑफ मैसेजेस। ये क्या है गाइस, एक मैसेज है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे VTP कॉन्फ़िगर्ड है, फॉर एग्जांपल इफ VTP इज कॉन्फ़िगर्ड हियर, सो व्हाटएवर द थिंग्स यू आर कॉन्फ़िगरिंग हियर, इट इज गोइंग टू अपडेट स्विच नंबर 2, यस और नो? अरे स्विच नंबर 2 को अपडेट देगा ना, यस और नो? Yes. Like कैसे other देगा? message. कैसे देगा? कुछ ना कुछ मैसेज के थ्रू देगा ना, यस और नो? राइट? Yes. द नेम ऑफ दैट मैसेज इज कॉल्ड VTP अपडेट मैसेज। क्या बोलते हैं उसे? VTP अपडेट मैसेज बोलते हैं। समझ में आया? क्लियर है गाइस? अरे बता दो। Yes, In sir. VTP, there are one message. The name of that message is VTP update message, and generally, by the help of that message, switch is going to update about its VLAN database with other switches. Other switch के साथ जो भी VTP की database है, वो किस मैसेज के थ्रू अपडेट करेगा? VTP के अपडेट मैसेज के थ्रू। समझ में आया? तो सर्वर मोड के अंदर याद रखो, if you configure the switch in a server mode, switch is going to generate the VTP message. VTP अपडेट मैसेज। क्लियर है गाइस? यस और नो? और एक बात और याद रखो VTP सॉरी सर्वर मोड के वाले में, इट वर्क्स एज ए रिले एजेंट। ये रिले एजेंट की तरह भी काम करेगा। रिले एजेंट का मतलब हो गया स्विच नंबर 1 जनरेट द VTP मैसेज, मैसेज रीच ऑन स्विच नंबर 2, हियर यू आर रनिंग द सर्वर मोड आल्सो। सर्वर what this switch will do, this switch will forward this VTP message from here to here। अरे समझ में आया? रिले का मतलब क्या हुआ? Whatever the thing switch number 2 receive, it just forward to the next switch। ये अगले स्विच की तरफ फॉरवर्ड कर देगा। समझ में आया? That is the meaning of relay agent। So if you configure the switch as a server mode, the server mode switch behave like a relay agent also। अरे क्लियर है? yes or no? Yes, अरे sir. बता दो। Okay, now see why I am telling you nowadays we are not using the server mode। switch number 1, switch number 2, switch number 3। फॉर एग्जाम्पल डोमेन नेम यहाँ पे है सिस्को, सिस्को, सिस्को। सो ऑन ऑल द स्विचेस डोमेन नेम इज सेम, यस और नो? समझ में आया? Yes, sir. ओके, नाउ दिस इज सर्वर मोड, सर्वर मोड, सर्वर मोड। तीनों स्विच किस मोड में है गाइस? सर्वर मोड में है। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल हियर आई राइट VLAN नंबर 10, हियर आई राइट VLAN नंबर 20। आई कॉन्फ़िगर हियर VLAN 10 and 20। Switch number 1 generate which message guys? VTP message। Message reach on switch number 2। Switch number 2 open this message and copy this in its VLAN database, right ना? Switch number 2 पे भी VLAN 10 and VLAN 20 कॉन्फ़िगर हो गया। Switch number 2 क्या करेगा फिर? आपके VTP मैसेज को आगे फॉरवर्ड कर देगा switch number 3 के पास, because I told you ना it works like a relay agent, right ना? Switch number 3 के पास VTP मैसेज आई। Switch number 3, what switch number 3 will do? Switch number 3 open that VTP message and copy all the VLAN in the in the VLAN database, right ना? अरे अपने VLAN database में कॉपी कर लेगा। यानी कि आपने VLAN 10 and 20 स्विच नंबर 1 पे कॉन्फ़िगर किया, ये कहाँ कॉन्फ़िगर हो गई? स्विच नंबर 2 एंड स्विच नंबर 3 पे कॉन्फ़िगर हो गई। यस और नो? बताओ, क्लियर है? अरे Yes, बता sir. दो, क्लियर है ना? यस और नो? डन? ओके, वेरी गुड। नाउ फॉर एग्जाम्पल, now see here what is the problem। for example na, here there is some users are there। यहाँ पे कुछ users बैठे हुए हैं। getting my point? these users are in the VLAN number 20। for example here ना, ये डायरेक्टर्स वगैरह बैठा हुआ है, कोई HR वगैरह बैठा हुआ है, कोई ऐसा समझ लो कोई क्रिटिकल यूजर्स बैठे हुए हैं यहाँ पे on switch number 2 in which VLAN number 20। अरे understand? yes or no? tell Yes. me। okay, for example after CCNA, one guy joined in a company and log into the switch, and unfortunately that guy run one command, no VLAN 20। इसने स्विच नंबर 3 पे क्या कर दिया? ये VLAN नंबर 20 को रिमूव करने का कमांड चला दिया गलती से। बट ये इस गाय को क्या समझ में आया? इस बंदे को समझ में आया कि भाई स्विच नंबर 3 पे VLAN नंबर 20 कॉन्फ़िगर, VLAN नंबर 20 क्रिएटेड तो है, बट VLAN 20 में कोई यूजर बैठा हुआ नहीं है। Again I am telling what that guy think on switch number 3 VLAN 20 is configured, but in VLAN number 20 none of the users is connected here। Getting the point everyone? So what this user did, this user ने no VLAN 20 का कमांड लिख करके VLAN 20 हटा दिया। ये बंदा सोचा कि भाई जब VLAN नंबर 20 में कोई बैठा ही नहीं है तो स्विच पे VLAN 20 कर क्या रहा है। Getting my point? और ये बंदा लॉजिक है,
इस बंदे की बात लॉजिकल है? अरे गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो? यस सर। रियल टाइम में अननेसेसरी वीलन स्विच पे नहीं क्रिएट करते। गेटिंग माय पॉइंट? अरे समझ में आया? तो इसने वीलन 20 को यहां से रिमूव कर दिया, बट व्हाट विल हैपन? This switch generate the VTP message immediately. Yes or no? Right? यस सर। This VTP message come on switch number 2. Switch number 2 also update its VLAN database and remove the VLAN number 20 from its database and forward this to switch number 1. Switch number also remove VLAN number 20 from its database. समझ में आया? Yes or no? बताओ। And अब सोचो, जितने भी यूजर्स आपके VLAN नंबर 20 में बैठे हुए थे, all the users who is sitting in the VLAN number 20, immediately सट तुरंत डाउन चले जाएंगे। तुरंत क्या हो जाएंगे गाइस? डाउन चले जाएंगे। दैट इज द प्रॉब्लम, यस और नो? बताओ। यस सर। दैट इज द प्रॉब्लम इन द सर्वर मोड। इफ यू आर डूइंग लाइक दिस, that will be the challenges. It means if you are doing any changes on any one switches, that is going to replicate on every switches. That is not the good, because you know na, in the real time में भाई आपके कंपनी में, हमारे कंपनी में मोर देन 100 VLANs काम कर रहे हैं, हर फ्लोर पे अलग अलग VLAN की कॉन्फ़िगरेशन है। गेटिंग माय पॉइंट? इफ वी आर डूइंग लाइक दिस, इट मींस देन आपको बहुत चैलेंजेस आ जाएंगे, इसलिए हम रियल टाइम में सर्वर मोड यूज करते ही नहीं है। क्लियर है गाइस? यस और नो? बता दो, अरे बता दो, क्लियर है? सर। अगला मोड है गाइस क्लाइंट मोड। मोड है गाइस क्लाइंट मोड। ओके, एक बात याद रखो, इसमें भी 2-4 पॉइंट मैं बता रहा हूं, याद रखना। सर्वर मोड के अंदर तुम वीलैन क्रिएट कर पा रहे थे या नहीं कर पा रहे थे? यस, वी कैन क्रिएट द वीलैन, वी कैन एडिट द वीलैन, वी कैन डिलीट द वीलैन, कुछ भी कर सकते थे तुम सर्वर मोड में। यस और नो? राइट ना? इन क्लाइंट मोड यू कांट ऐड, यू कांट रिमूव, यू कांट एडिट। आप नहीं कर सकते ये सारी चीजें क्लाइंट मोड में। समझ में आया? अरे बता दो, ये हम नहीं कर सकते। अगर नहीं कर सकते तो फिर अगर आपने किसी स्विच पे क्लाइंट मोड कॉन्फ़िगर कर रखा है, तो फिर उस स्विच को वीलन की इंफॉर्मेशन मिलेगी कहां से? अगेन आई एम टेलिंग, switch number 1, switch number 2, switch number 3. For example, this switch is the client mode. It means here you can't create any VLAN. बताओ, इस switch पे आप VLAN create नहीं कर सकते, but on this switch you need ना some VLAN. आप चाह रहे हो ना कुछ VLAN. Now the question is how this switch learn the VLAN? The answer is from the server mode. अरे जो सर्वर मोड के स्विच है ना आपके, ये जो भी VTP का मैसेज भेजेगा ना, वो यहाँ पे तो आएगा, यस और नो? तो ये अपना VLAN डेटाबेस को अपडेट कर लेगा। गेटिंग माय पॉइंट? यानी क्लाइंट मोड किस पे डिपेंड है? सर्वर मोड पे। अरे क्लियर है? यस और नो? समझ में आया? Again I am telling, client mode switch is fully depend on server mode switch, because on client mode switch you cannot configure any VLAN. So now question is how the client mode switch will get to know about the VLAN in your network? The answer is by the help of server mode switch. By the help of which mode switch, guys? Server mode switch. अरे is this clear everyone? Yes or no? Tell me. यस सर। Understand ना? तो again आप दूसरी बातें याद रखो, client mode switch get the VLAN information from which mode? सर्वर मोड। कहां से मिलती है इसे भाई इंफॉर्मेशन? सर्वर मोड से। तीसरी बात है, इट वर्क एज ए रिले एजेंट। ये रिले एजेंट की तरह बिहेव करेगा। समझ में आया? ये रिले एजेंट की तरह बिहेव करेगा। अरे क्लियर? यस और नो? यस सर। अंडरस्टैंड? ओके, नाउ आ जाओ टोपोलॉजी के ऊपर। स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3। मान लो ये सर्वर मोड है, मान लो ये क्लाइंट मोड है, ये भी आपका क्लाइंट मोड है। ठीक है, आपने डोमेन नेम कॉन्फ़िगर कर दिया सिस्को, सिस्को
कोई प्रॉब्लम बताओ? नहीं। No. नाउ आपने स्विच नंबर 1 पे एक VLAN क्रिएट किया, VLAN नंबर 10, VLAN नंबर 20. Switch number 1 will generate the VTP message. Yes or no? Message reach on switch number 2. Switch number 2 VLAN VTP के मैसेज को ओपन करेगा, देखेगा कौन कौन सी VLAN है, अपना VTP टेबल को अपडेट कर लेगा. Yes or no? अरे VLAN डेटाबेस को अरे बता दो. VLAN नंबर 10, VLAN नंबर 20. Yes or no? बताओ. अरे बताओ. Yes ना? और क्लाइंट मोड स्विच को क्या बताया था मैंने, रिले एजेंट की तरह भी काम करता है, यानी कि इस VTP मैसेज को आगे भी फॉरवर्ड कर देगा. स्विच नंबर 3 भी अपने VLAN डेटाबेस में VLAN 10 एंड VLAN 20 ऐड कर लेगा. यस और नो? अरे टेल मी यस और नो गाइस. डन ना? Yes. ओके. नाउ फॉर एग्जांपल एनी गाय केम हियर ऑन स्विच नंबर 3 फ्रॉम CCNA करके कोई बंदा आया, अब इसने कमांड लिख दिया नो VLAN 20. This switch will not accept this command because this switch is in which mode? Client mode. किस मोड में है गाइस? This switch is in client mode. So this switch is not going to take this command. ये इस कमांड को ले ही नहीं पाएगा. अरे गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? अरे बता दो. Yes, sir. यस. अरे समझ में आया? किसी को बता दो भाई, समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ. मैं स्विच पे Yes, हूँ, sir. Yes, sir. मैं स्विच पे हूँ, मैं लिख रहा हूँ VTP मोड. फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ, कितने मोड है यहाँ पे? क्लाइंट, सर्वर, ट्रांसपेरेंट, है ना? ये ऑफ क्या है वो बात की बात है. मैंने लिखा यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल सर्वर, मैंने लिख दिया सर्वर, यानी कि इस वाले पे मैं VLAN 10 एग्जिट मैं क्रिएट कर पा रहा हूँ VLAN. यस और नो? अरे बता दो. डू शो VLAN ब्रीफ. मैं VLAN 10 क्रिएट कर पा रहा हूँ ना? यस और नो? बताओ गाइस. Yes. Right? Even we can add it also. VLAN 10. I want to write the name Shubham. Exit. मैं एडिट भी कर पा रहा हूँ. Do show VLAN brief. मैं VLAN नंबर 10 को एडिट भी कर लिया. यस और नो? अरे बता दो. राइट? Yes. नो VLAN 10. मैं VLAN 10 को रिमूव भी कर पा रहा हूँ. शो VLAN brief. VLAN 10 रिमूव भी हो गई. Yes, sir. It means in server mode, I am able to add the VLAN, delete the VLAN, and remove the VLAN. Done? Yes or no? Okay. आ जाओ. VTP mode now client. ठीक है? मैं कौन से मोड में आ रहा हूँ? क्लाइंट मोड. कर दिया. अब मैं डाल रहा हूँ VLAN 10. क्या आ रहा है? कमांड रिजेक्टेड. VLAN VTP VLAN configuration not allowed when device is in which mode? क्लाइंट मोड. अगर आपका डिवाइस क्लाइंट मोड के अंदर है, then I am not able to create the VLAN. When not able to create the VLAN, not able to delete the VLAN, not able to edit the VLAN. समझ में आया? यस और नो? बताओ. Okay. तो सर पर्पस क्या है क्लाइंट मोड का? Yes, sir. यही पर्पस है ना कि आप सर्वर मोड में क्या प्रॉब्लम थी कि तो कोई बंदा आ करके इजीली क्रिएट कर रहा था ना VLAN, जिससे आपके इधर इम्पैक्ट हो गया था. yes, अरे इधर आपका इम्पैक्ट हो गया था ना? यस और नो? yes, sir. But now if you configure this switch is in the client mode, it means now this fresher guy is not able to create the VLAN, Okay. not able to do anything related So to the one VLAN. switch is in server mode and other switches in client mode. बताओ आपकी जो सर्वर मोड की जो प्रॉब्लम थी कहीं ना कहीं क्लाइंट मोड में सॉल्व हो रही है ना? यस और नो? एवरीवन टेल Yes. मी गाइस. राइट? अरे Yes. बता दो भाई. यस और नो? Yes, yes, sir. यस. Yes, sir. Now in client mode also there is a problem. Number 1, switch number 2, switch number 3. मान लो कि आपके कंपनी का ना DNS सर्वर, DHCP सर्वर यहीं पे पड़ा हुआ है, स्विच नंबर 2 पे पड़ा हुआ है. फॉर एग्जांपल हेयर ये पड़ा हुआ है VLAN नंबर 20 में.
दैट इज इन विच मोड गाइस? क्लाइंट मोड। ये भी आपका किसमें पड़ा हुआ है? क्लाइंट मोड में। और ये पड़ा हुआ है आपका सर्वर मोड में। यस और नो? अरे डन ना? अरे बता दो। Yes. तो VLAN 10 and 20 यहाँ भी है, 10 यहाँ 10 and 20 यहाँ भी है, एंड 10 and 20 यहाँ भी है। कोई प्रॉब्लम है? यस और नो? नहीं है ना? No. ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ आपका कोई ISP है, यहाँ बैठा हुआ कोई आपका एंड यूजर है, बहुत सारे यूजर्स कनेक्टेड हैं जो इस DHCP DNS को एक्सेस कर रहे हैं। कोई दिक्कत? फॉर एग्जाम्पल यहाँ आपके 500 यूजर हैं जो इस डिवाइस को एक्सेस कर रहे हैं, क्योंकि जितने भी यूजर होंगे, कोई भी वेबसाइट को एक्सेस DNS के थ्रू कर रहा होगा, और सारे डिवाइस को IP कहाँ मिल रहा होगा? DHCP से मिल रहा होगा। यस और नो? एवरीवन टेल मी, राइट? It means all the 500 users are fully dependent on DNS and DHCP server, which is in VLAN number 20. Fine? Yes or no? बता दो. Yes, sir. For example, any attacker came with one switch, that is the attacker switch. एक अटैकर आया अपना एक स्विच लेकर के, समझ में आया? उसने अपना स्विच को आपके इस वाले स्विच से कनेक्ट कर दिया. That attacker connect its switch with your client switch. Sorry, this switch number 3. Switch number 3 is in which mode? Client mode. Client mode. Now what attacker did? Attacker configure this switch, its on switch in the server mode. Attacker ने अपना switch को server mode में configure कर लिया. और this attacker write the command no VLAN 20 command चला दिया इसने अपने switch के ऊपर. क्या होगा? Attacker switch generate the VTP update. Yes or no? Yes. अरे बता दो. जनरेट किया, किसके पास आया? Switch 3. What switch number 3 will do? Switch number 3 immediately delete the VLAN number 20 and forward this VTP message to switch number 2. Switch number 2 भी VLAN 20 delete करेगा, आगे forward कर देगा switch number 1. Switch number 1 also delete VLAN number 20. क्या होंगे आपके? सारे के सारे 500 यूजर क्या हो गए? बैठ गए. अरे बताओ, yes or no? Yes, sir. Yes. That is also a problem. Are you getting my point? Yes or no? That is Yes. also a problem. समझ में आया guys? Yes or no? So in client mode also this is the problem. समझ में आया? अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन क्या है? Its solution is the next mode, that is called the transparent mode. कौन सी मोड बोलते हैं guys? ट्रांसपेरेंट मोड बोलते हैं. ठीक है? ट्रांसपेरेंट मोड के बारे में एक बात याद रखो, वी कैन, आप इसमें ऐड भी कर सकते हो, इसमें रिमूव भी कर सकते हो, इसमें एडिट भी कर सकते हो VLAN. गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? पॉइंट नंबर 2, ये आपको बाय डिफॉल्ट दिखेगी लेटेस्ट स्विचेस पे. दिस इज बाय डिफॉल्ट ऑन मल्टीपल लेटेस्ट स्विचेस. गेटिंग माय पॉइंट? थर्ड थिंग, इट इज कॉल्ड स्टैंड अलोन स्विच. इसे हम स्टैंड अलोन स्विच बोलते हैं. क्यों बोलते हैं समझ में आ जाएगा. अगली बातें वेरी इंपॉर्टेंट, इट रिसीव द VTP update and relay to the next switch. ये अगले स्विच को रिले भी कर देगा, बट नॉट अपडेट इट्स VLAN डेटाबेस. अपना डेटाबेस को अपडेट नहीं करेगा. अब सोचो, आ जाओ पिछले टोपोलॉजी पे. स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3, VLAN नंबर 20, DNS, DHCP. DHCP, ISP, एंड यूजर. ऐसा ही था? यस और नो? बताओ Yes, sir. guys. Okay, that is the server mode, that is the client mode. What I am doing, I am configuring this switch as the transparent mode. Fine? Yes or no? अरे बता दो. Clear? Yeah. Transparent Yes. mode switch means you need to configure each and every VLAN manually here. First thing. Okay, now attacker came here. What attacker did? Attacker configure this switch as in which mode? अरे बताओ, server mode, right ना? This Yes. attacker write the command no VLAN 20. This switch generate the VTP message.
came on switch number 3. What switch number 3 will do? Switch number 3 remove the VLAN number 20 from its database and forward the VTP message to VLAN number, sorry, switch number 3. Yes or no? Then what switch Yes, number sir. 2 will do? Switch number 2 will forward your VTP message from here to here towards the switch number 1 without updating its VLAN database. That is the rule. स्विच नंबर 2 जो कि ट्रांसपेरेंट मोड में है, स्विच नंबर 2 वीटीपी मैसेज को रिले तो कर देगा आगे स्विच नंबर 1 की तरफ, बट स्विच नंबर 2 कभी भी अपना वीटीपी का जो डेटाबेस है ना वो अपडेट नहीं करता। समझ में आया? और जैसे ही अगर वो अपडेट नहीं करेगा तो VLAN 10 एंड 20 वैसे ही रह जाएंगे, ये डिलीट नहीं होंगे यहां से। यस और नो? बता दो। Yes, sir. Yes. Again, I am telling, transparent mode switch just relay your VTP message from one switch to another. Transparent mode switch is not going to update your its own VLAN database. अपना VLAN database को कभी भी अपडेट नहीं करता। समझ में आया? Yes or no? अरे बता दो गाइस। Yes, sir. जैसे ही अपडेट नहीं करेगा VLAN 1020 इसमें परा ही हुआ रह जाएगा, वो हटेगा ही नहीं तो कोई इंपैक्ट भी नहीं होगा। इसीलिए नाउअडेज हम क्या यूज करते हैं? ट्रांसपेरेंट मोड यूज करते हैं, ना कि सर्वर मोड और क्लाइंट मोड। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। समझ में आया सभी को? एवरीवन Yes, sir. गाइस बता